नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। उधर चारमूर्ति मठ के चमत्कारी पुरुष श्री शिवलिंग महास्वामी जी की मेधावी शताब्दी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम। कावेरी बेसिन में भारी बारिश से तमिलनाडु में पानी की कमी पूरी हो गई। सिद्धरामैया ने केरल को हर संभव राहत सहायता देने का वादा किया। 2 IAS अधिकारियों को तैनात किया। वायनाड की तबाही पर अमित शाह ने राज्यसभा को किया संबोधित। बोले, हमने दी थी चेतावनी। प्रधानमंत्री या किसी अन्य पद पर क्यों नहीं बैठे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, खुद दिया जवाब। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर जिला के कमलनगर तालुके के मुधोल चारमूर्ति मठ के चमत्कारी पुरुष श्री शिवलिंग महास्वामी जी के मेधावी शताब्दी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कन्नड़ भाषा को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो राज्य की सीमा पर पैराकिस के हमले के तहत विलुप्त होने के कागार पर थी। तालुके के मुधोल चारमूर्ति मठ के चमत्कारी पुरुष श्री शिवलिंग महास्वामी स्वतंत्र सेनानियों ने न केवल राज्य की सीमा पर इस्लाम और ईसाई धर्म के धार्मिक प्रचार से हिंदू धर्म की रक्षा की, बल्कि उर्दू और अंग्रेजी भाषा के प्रभाव में आने वाले कीर्ति तालुका में मुधोल के चारमूर्ति मठ के चमत्कारिक लोगों ने भी रक्षा की। कन्नड़ भाषा विलुप्त होने के कागार पर है। आर सीमावर्ती क्षेत्र बीदर में इसका पालन पोषण करने वाले शिवलिंग शिवाचार्य के मठाधीश थे, जिन्होंने श्री शिवलिंग महास्वामी के रूप में माध्यमों के साथ अपने मठ का इतिहास साझा किया है। हर वर्ष आषाढ़ माह में मनाए जाने वाले मुधोल चारमूर्ति मठ के चमत्कारी पुरुषों की शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष श्री शिवलिंग महास्वामी पुण्य की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वहां के श्रद्धालुओं से 1 अगस्त को अंतिम समापन कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया है। ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಈ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಗಟ್ಟಿನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಈ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು. ಅವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿ ಈಗ 100 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು 100 ವರ್ಷದ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ದೈವದರು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಜುಲೈ 9ರಿಂದ ಚಾಂಗ್ಲೇರಿಯಿಂದ ಮುಧೋಳದವರೆಗೆ 2 ದಿವಸ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನೇ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ 101 ದಿವಸ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂಥ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು ಚಾಂಗ್ಲೇರಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮೂರವರು 150 ಜನ ಪ್ರತಿ ಊರವರು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು. ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಚಾಂಗ್ಲೇರಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಂದಗೋಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋದೇಪುರ್ಗಿ, ಜೋಳದಾಪುರ್ಗಿ, ಪಾಲ್ಕಿ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾಲ್ಕಿ ಹಿರೇಮಠದ ಉಭಯ ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಯಾರಾದರು. ಶಿವಲಿಂಗ ಗುರುಗಳು ಕೈಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಯಾರಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಠ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷದ ಮಾತಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತಲ್ಲ ಪಾಲಕಚೇರಿಗಳು ನುಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಂಗಮ ಬಂದ್ವಿ. ಸಂಗಮ್, ಡಿಗ್ಗಿ, ಕೊಟ್ಟಿಗ್ಯಾಳ್, ಕರಿಕ್ಯಾಳ್, ಔರಾದ್ರಿಂದ ಮುಧೋಳಕ್ಕೆ ಔರಾದ್ ಅಂಬರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಧೋಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಯುವಕರು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪುಣ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನೆ ಮಾತು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಯಾರಾದರಿದ್ರೆ ಅದು ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಧೋಳದ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೂಢಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಪ್ಪ
ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತನು ಮನವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಕರ್ತೃಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನ ಪುಣ್ಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, 1-2 ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಯುವಕರಿಗಾಗಲಿ, ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಲಿ, ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ದೀನ ದಲಿತರು ಈ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಬೆಂದಿರ್ತಾರೋ ನೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಈ ತಿಂಗಳ 21 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವತ್ತ ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 21 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಅವರ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪುರಾಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಹಾಮಂಗಲ ಇದೆ. ಈ ಮಹಾಮಂಗಲ पिछले 2 हफ्तों में कावेरी बेसिन में हुई अभूतपूर्व बारिश के कारण कर्नाटक के जलाशयों से तमिलनाडु में रिकॉर्ड मात्रा में पानी बह रहा है, जिसे बेलगुंडल के अंतर्राज्यीय बिंदु पर मापा जाता है. इससे न केवल तमिलनाडु को कावेरी जलापूर्ति में कमी दूर हुई, बल्कि अगस्त का कोटा भी पहले ही पूरा हो गया. अधिशेष के बावजूद तमिलनाडु के अधिकारियों ने कावेरी जल विनियमन समिति CWRC से आग्रह किया कि वह कर्नाटका को अगस्त में प्रतिदिन 1.5 TMCF के पानी की आपूर्ति जारी रखने का निर्देश दे. CWRC ने मंगलवार को अपनी 100वीं बैठक में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अच्छी बारिश ने 1 जून से 17 जुलाई के बीच व्याप्त तनाव की स्थिति को कम कर दिया है. जून में कर्नाटक के तमिलनाडु को 9.19 TMCFT को तुलना में 2.22 TMCFT पानी की आपूर्ति की. 11 जुलाई को CWRC ने कर्नाटक को जुलाई के लिए 32 TMCFT की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 1 TMCFT पानी जारी करने का निर्देश दिया. 17 जुलाई तक एक मजबूत मानसून प्रणाली स्थापित हो गई, जिसने सभी घाटे को मिटा दिया. कावेरी बेसिन में 17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच सामान्य से 68 अधिक और 24 जुलाई से 30 जुलाई के बीच सामान्य से 143% अधिक बारिश हुई. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वह केरल के वायनाड जिले में हुए विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ से बेहद दुखी है. सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक केरल को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है. सीएम ने वायनाड में आई भयावह बाढ़ से बहुत दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है. कर्नाटक इस चुनौतीपूर्ण समय में केरल को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है. आइए एकजुट और मजबूत रहे. मुख्यमंत्री स्थिति पर बारीक से नजर रख रहे हैं और उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को वायनाड में बचाव और राहत प्रयासों में आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है. कर्नाटक के 2 IAS अधिकारियों PC जापर और दिलीश शशि को बचाव और राहत कार्यों के बारे में केरल के अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए नियुक्त किया गया है. रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आइए देखते हैं अन्य समाचार. केरल के वायनाड में आई तबाही में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. कई लोग बेघर हो चुके हैं और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं. वायनाड में हुई लैंडस्लाइड को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संबोधित किया है. अमित शाह ने कहा केंद्र सरकार की तरफ से केरल सरकार को लैंडस्लाइड को लेकर अर्ली वार्निंग दी गई है. चेतावनी देने के बावजूद केरल सरकार ने मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई और इसमें लापरवाही बरती. इस घटना को लेकर मिली चेतावनी के बाद भी केरल सरकार ने लोगों को वहां से नहीं हटाया. केरल सरकार ने केंद्र की चेतावनी के नजरअंदाज किया. RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अक्सर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय देते रहते हैं.
भागवत हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में श्री दयानंद गुरुकुल महाविद्यालय के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान महाविद्यालय की एक छात्रा ने मोहन भागवत से सवाल किया कि वह भारत के प्रधानमंत्री या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण पद पर क्यों नहीं बैठे हैं। इस सवाल पर दिए गए मोहन भागवत के बयान की चर्चा हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से छात्र ने पूछा कि आप देश के प्रधानमंत्री या कोई अन्य महत्वपूर्ण पद हासिल कर सकते थे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया। इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके जैसा कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, सब ऐसे ही हैं। भागवत ने कहा कि कुछ होने के लिए हम यहाँ नहीं हैं, देश के लिए काम करना है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी स्वयंसेवक को आप व्यक्तिगत पूछे, वह शाखा चलाने की इच्छा जताएगा। संघ का आदेश सर्वोपरि है। हम अपने आप को संघ में गाड़ देने के लिए यहाँ है, नहीं तो आदमी घर नहीं छोड़ सकता। हमने सोचा हमारी क्या हस्ती है, देश बने, इसमें पूरा समरस विलीन होकर काम करे, इसलिए इस तरीके के दरवाजे पहले ही हमने बंद कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले में इनकी न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। तीनों नेता आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि केवल सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है। ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी और सीबीआई की जांच पूरी हो गई है। सीबीआई ने सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। वहीं ईडी इस मामले में पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है। सीबीआई ने सोमवार को दायर की गई चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, व्यापारी पी शरद चंद्र रेड्डी, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा के नाम शामिल हैं। सीबीआई की चार्जशीट पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को खूब गर्मागर्मी देखने को मिली। विपक्ष ने कानून का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जो बातों से नहीं मानते हैं, तो उन्हें दूसरे तरीके से हम समझा रहे हैं। उन्होंने सदन में इस दौरान सवाल किया कि क्या ये सच नहीं है कि आजमगढ़ में सपा विधायक की संलिप्तता के चलते जहरीली शराब की तस्करी हुई। ये सच नहीं है कि इसी शराब को पीने से लोगों की मौत हुई थी। क्या कानपुर का सपा विधायक कानपुर को दंगों की आग में झोंकना चाहता था? ये सच नहीं है। विधानसभा में कानून के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। जो लोग बातों से नहीं मानते हैं, उनके लिए राज्य सरकार दूसरे तरीके अपना रही है। विरोधी दल के नेता तो इस बात को जानते हैं। सरकार ने प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई बढ़ा दी है। यह इसी का हिस्सा है। आजमगढ़ में जहरीली शराब को पीने की वजह से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसमें सपा के विधायक की मिली भगत निकली, जो अब जेल में बंद है। आपका वर्तमान विधायक है वह। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक का पदभार 1 अगस्त से संभालेंगे। इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्ति होने वाली वह पहली महिला होंगी। इससे पहले उन्होंने एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति के बाद अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला भी थी। पिछले साल जब साधना सक्सेना नायर ने अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद संभाला था, तब वायुसेना के अधिकारियों ने कहा था कि भारतीय वायुसेना के अधिकारी एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर प्रभावी रूप से केवल दूसरी महिला अधिकारी है जिन्होंने पूरे सेवा काल में वायुसेना में अलग अलग पदों पर सेवाएं देने के बाद एयर मार्शल के पद तक पहुंची। पदभार ग्रहण करते समय वायुसेना प्रमुख रिया चौधरी भी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल साधना नायर ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट मेरी कॉन्वेंट प्रयागराज से प्रारंभ की और लोरेटो कॉन्वेंट लखनऊ से पूरी की। इस बीच वह तेजपुर, गोरखपुर, कानपुर और चंडीगढ़ के स्कूलों में गई। उन्होंने एक प्रतिष्ठित अकादमी रिकॉर्ड के साथ पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की।
और दिसंबर 1985 में आर्मी मेडिकल कोर में नियुक्ति हुई। साधना नायर के पास फैमिली मेडिसिन में स्नातकोत्तर की डिग्री है। उन्होंने एम्स नई दिल्ली में मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स में 2 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। यहां कांग्रेस के विधायक साहब सिंह गुज्जर के खिलाफ कुछ महिलाओं ने मारपीट का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक ये महिलाएं विधायक के पास बिजली के खराब ट्रांसफार्मर की समस्या के समाधान की मांग करने गई थी। हालांकि दूसरी ओर विधायक ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है और उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वह और मऊ गांव की अन्य महिलाएं सोमवार की सुबह खराब ट्रांसफार्मर की समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्वालियर ग्रामीण के विधायक साहब सिंह गुज्जर के आवास पर गई थी। हालांकि समस्या में मदद करने के बजाय विधायक साहब सिंह गुज्जर ने महिलाओं को पीटा और शिकायतकर्ता और अन्य महिलाओं को बालों से घसीटा। इस पूरी घटना के बारे में कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुज्जर ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा उनसे मिलने के बाद उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों से बात की और उन्हें समस्या को सुलझाने का निर्देश दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने उनके घर के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी और थाने जाने से पहले उनके निजी सुरक्षा अधिकारी टीएसओ पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी अभद्र नहीं कहा, यह एक राजनीतिक साजिश लगती है। पाकिस्तान में कब क्या हो जाए इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यहां अल्पसंख्यकों पर हमले तो आम है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश भी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा की हत्या करने का आदेश देने वाले कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के उपप्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान न्यायाधीश के एक फैसले को लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। फैसला यह था कि उन्होंने अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय के उस व्यक्ति को जमानत दे दी थी जिस पर ईशा निंदा करने का संदेह है। पाकिस्तान में ईशा निंदा को लेकर कई बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता है और पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान टीएलपी के अमीर पीर जहीरुल हसन शाह को आतंकवाद और अन्य आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पूर्वी पंजाब प्रांत के ओकरा शहर में छिपा था। मुबारक सानी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर आयोजित एक रैली के दौरान दिए गए भाषण के लिए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तारी की गई। अपने भाषण के वायरल वीडियो में शाह अपने समर्थकों से यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि जो कोई भी मुख्य न्यायाधीश ईसा का सिर कलम करेगा उसे वह 1 करोड़ रुपए देगा। फिर से नजर मुख्य समाचारों पर। उधर चायमूर्ति मठ के चमत्कारी पुरुष श्री शिवलिंग महास्वामी जी की मेधावी शताब्दी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम। कावेरी बेसिन में भारी बारिश से तमिलनाडु में पानी की कमी पूरी हो गई। सिद्धरामैया ने केरल को हर संभव राहत सहायता देने का वादा किया। 2 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया। वायनाड की तबाही पर अमित शाह ने राज्यसभा को किया संबोधित। बोले हमने दी थी चेतावनी। प्रधानमंत्री या किसी अन्य पद पर क्यों नहीं बैठे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, खुद दिया जवाब। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।